مایا، اس گھر میں تمہاری ماں نے میری موم کی زندگی برباد کی تھی، ہم سب کی نظروں میں گرا دیا تھا انہیں، ہم سب ان سے نفرت کرنے لگے، بے حد نفرت۔ ہم نے انہیں ہمیشہ غلط سمجھا اور بد کردار کے سوا کبھی ان کے لیے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے، اور اسی گھر میں انہوں نے اپنی جان دے دی، اور ان کی موت کا ذمہ دار میں تھا۔ اور ان کی موت کا ذمہ دار پتہ ہے کون تھا؟ تمہارا باپ تھا۔ آج جب میری ماں مر گئی تو سارے خاندان کو وہ اچھی لگنے لگی، سب ان کی قدر کرنے لگے۔ ان کے جیسا صابر میں نے آج تک کسی کو نہیں پایا، اور یہی وجہ ہے میں تمہیں اس گھر میں لایا ہوں۔ یہ گھر برسوں سے بند تھا، لیکن میں نے اپنے انتقام کی شروعات اسی گھر سے کی جہاں میری ماں کی زندگی کا اختتام ہوا۔ جب میں اپنی ماں کی زندگی کے اوراق پلٹتا ہوں نا تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں گھنٹوں ان کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا ہوں۔ میں انہیں جھنجھوڑ کر باہر نکال لینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی دے کر بھی انہیں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو بہت دکھ دیا ہے۔ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے پایا۔ میں انہیں لاوارث بول کر لوگوں کے کندھوں کا محتاج کر کے زمین کی تہہ میں سلا گیا۔ اور پتہ ہے یہ سب کیوں ہوا؟ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے۔ اگر تمہارے باپ نے میری ماں کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا تو تمہاری ماں نے میری ماں کی زندگی اور جذبات کے ساتھ۔ میں کیسے معاف کر دوں تمہیں اپنے دل میں؟ میں تمہارے گھر والوں کو کیسے؟ میں تمہیں دکھ دینا چاہتا ہوں، بے حد، ایسا دکھ جو ظفر صاحب اپنے دل میں محسوس کریں۔ پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہے درد کس طرح کا ہوتا ہے، کیسے سہا جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح میری ماں کو بھی درد ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہوا تھا۔ وہ تمہارا دکھ تو محسوس کریں گے، لیکن میری ماں کا دکھ تو کوئی بھی محسوس کرنے والا نہیں تھا۔ وہ تو اکیلی تھی، بہت اکیلی۔ شایان کے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مایا حیرت سے شایان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جس شخص کا اتنا رعب اور دبدبا اور خوف تھا، آج وہ انسان اس کی آنکھوں کے سامنے روئے جا رہا تھا۔ جس کی آواز گرجدار تھی، سامنے والا انسان کانپ کر رہ جاتا تھا، آج اس کی آواز میں دکھ بول رہے تھے۔ جس کے وجود کی آہٹ پر مایا کا دل مٹھی میں آ جاتا تھا، آج وہ وجود مایا کے سامنے ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ کتنا دکھ تھا اس کے لہجے میں، اس کی آواز میں۔ کیا کیا تھا بابا اور ماما نے؟ اور میری ماں تو فروخ کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ پھر وہ کیسے کسی کے ساتھ برا کر سکتی ہیں؟ تمہیں کس نے بولا کہ وہ مر گئی تھی؟ شایان گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتا تلخی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب صاف ہے مایا، تمہیں جھوٹ سنایا گیا ہے۔ تمہاری ماں مری نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اور مجھ سے سب جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اور مرے ہوئے لوگوں کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ مایا لرزتی آواز میں بولی۔ یہ جھوٹ نہیں، سچ ہے مایا ظفر، تمہاری ماں زندہ ہے اسی شہر میں۔ تمہیں بچپن سے لے کر اب تک بے وقوف بنایا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے تمہارے ساتھ۔ سچ کیا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ پلیز۔ سچ سننے کا حوصلہ رکھتی ہو خود میں؟ تمہارے ساتھ رہ کر بھی کیا میرے حوصلے بلند نہیں ہو سکتے؟ خیر چھوڑو، بتاؤ تم کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ سچ تو تمہارا باپ اپنی زبان سے خود تمہارے سامنے بولے گا۔ مایا ظفر خان، میری کہی باتوں پہ شاید تم یقین نہ کر سکو، بہت جلد سچ اور جھوٹ سے پردے اٹھ جائیں گے۔ تمہیں جو اپنے باپ پر بڑا یقین ہے نا، وہ یقین زوال پذیر ہونے کو ہے بہت جلد۔ اور اپنے باپ سے پہلے تم سے سچ سننا چاہوں میں اگر تو بتاؤ، کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے سچ سن کر تمہیں یقین نہیں آئے گا مایا، اس لیے بہتر ہے کہ ضد مت کرو اور اپنے باپ سے جا کر پوچھو۔ ٹھیک ہے، میں بابا سے پوچھوں گی۔ کب چھوڑو گے تم مجھے میرے گھر؟ 1-2 دن میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ کیا تم واپس آؤ گی میرے پاس مایا؟ شایان نہ جانے کس احساس کے تحت بولا تھا، تم واپس لانا چاہتے ہو؟ مایا جواباً شایان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی۔ شایان نظریں چرائے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ مایا کو اپنی بات کا جواب مل گیا تھا۔ اپنے آنسو ضبط کرتی وہ کھڑکی سے پار دیکھنے لگی، جہاں سورج بالکل غروب ہو چکا تھا۔ رات کی رانی اپنے پر پھیلا کر سو رہی تھی۔ آؤٹنگ پر چلو گی میرے ساتھ؟ شایان کی بیتوکی خواہش پر مایا حیرت کے سمندر میں گر گئی۔ مشکوک نظروں سے بغور ہادی کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں سنجیدگی کے سوا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیوں؟ اپنی بیوی کے ساتھ آؤٹنگ پر جانا کوئی گناہ ہے کیا؟ نہیں، گناہ تو نہیں۔ خیر، یہ اچانک سے کی گئی فرمائش کے پیچھے کوئی بڑا دکھ جو ہے وہ جان سکتی ہوں میں؟ مایا سینے پر ہاتھ باندھے استفسار کرنے لگی۔
हर बात के पीछे दुख का होना ज़रूरी है क्या? कभी कभी इंसान खुद भी बहुत बड़े दुख से गुजर रहा होता है, जिसे वो अपने चेहरे की गहराइयों में छुपा लेता है। मुस्कुराते लब इंसान के दुखों से आज़ाद होने के गवाह तो नहीं होते ना। उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है महफिल में खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए। तन्हाई में रिश्वत सिसकियाँ दी जाती हैं। अगर कोई प्यारा समझने वाला हो तो दिल के आखिरी कोने में छुपे दर्द तक भी पहुंच जाता है। और अफसोस कि आजकल ऐसे प्यारों का मिलना मुश्किल है। शायान अफसुर्दा लहजे में बोलता माया की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। क्या जाना पसंद करोगी मेरे साथ? हाँ हाँ चलें। माया चौंकते हुए गोया हुई। शायान की गहरी नज़रें उसके मासूम चेहरे का तवाफ कर रही थी। गाड़ी में हनूस खामोशी छाई हुई थी। दोनों में से किसी ने बोलने की पहल नहीं की। माया हंकारा भरती शायान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर दुख के साए मंडला रहे थे। आवाज़ टूटी फूटी और भारी लग रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। शायान भारी होती आवाज़ के साथ अपनी बात मुकम्मल करते रुख मोड़े खिड़की से पार देखने लगा। वापस कब लेने आएंगे? तुम वापस आना चाहती हो मेरे पास? शायान माया की आंखों में आंखें डालता बोला। ऑफ कोर्स, आप मेरे शोहर हैं, मुझे वापस आपके पास ही आना है। अब मेरी शादी हो चुकी है तो आपका घर, आपके पास ही रहूंगी ना। सारी ज़िंदगी बाबा के घर तो नहीं रह सकती। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम बहुत मासूम हो और मैं एक दरिंदा। अगर तुम मेरे पास रही तो मेरा इंतकाम मुझे कभी सुकून से नहीं जीने देगा। अभी मेरे अंदर का हैवान सोया हुआ है माया। मेरे इंतकाम की आग सर्द पड़ी है। इससे पहले कि तुम्हारा वजूद एक बार फिर मेरे इंतकाम की आड़ में जले, तुम्हें आज़ाद कर देना चाहता हूँ। शायान नज़रें चुराते हुए बोला। तो मुझे कैद ही क्यों किया था शायान? अगर आज़ाद करना चाहते हो तो मुकम्मल आज़ाद करो, वरना मुझे अपनी कैद में ही रहने दो। तुम माया भी उसी के लहजे में बोली। क्या मतलब? मैं तुम्हें मुकम्मल आज़ाद कर रहा हूँ। तुम जहाँ चाहो जाओ, जिसके साथ जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी और से शादी की भी इजाज़त देता हूँ। शायान, माया हलक फाड़ कर चीखी थी। गाड़ी में छाई खामोशी में हनूज इजाफा हो रहा था। माया शायान से नज़रें हटाए खिड़की से बाहर नजर आते मनाजिर देखने लगी, गोया अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायान, आपने मुझसे निकाह क्यों किया था? क्या आप इतने बेगैरत हैं कि अपनी इज्जत को किसी और को सौंप देंगे, वो भी अपने ही हाथों से? तो तुम खुद बोल रही हो कि मैं तुम्हें मुकम्मल आज़ाद कर दूं। शायान हैरत से माया के चेहरे को देखने लगा, जहां आंसू आंखों के रास्ते गालों पर टपक रहे थे। शायान, आपको पता है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और ये रिश्ता महज कागजी ही हो, लेकिन जज्बात कागजी नहीं होते। वो गवाहों के मोहताज नहीं होते। जज्बात दिल के पन्नों पर रक़्म होते हैं, जिन्हें ताउम्र मिटाया नहीं जा सकता। ना ही वो कागज़ फाड़े जा सकते हैं और ना ही उन जज्बात से मुकर कर खुला लिया जा सकता है। अगर आपको मुझे आज़ाद करना ही है तो अपनी मोहब्बत से भी आज़ाद कर दीजिए, वरना मैं हमेशा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। आप जैसे भी हैं, मैं आपके दिए हर ज़ख्म, हर दर्द को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करूंगी। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा आपसे, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़िए मत शायान। माया प्लीज़, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है और मैं तुम्हें जबरन अपने साथ नहीं बांध सकता। तुम जब चाहो किसी दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकती हो। और आप ये बात भूल रहे हैं कि मेरा आपसे निकाह हुआ है। मैं कानूनन और शरन बीवी हूँ आपकी, और उससे पहले तुम मेरे माँ के मुजरिम और मेरे दुश्मन की बेटी हो, और मैं कभी तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम डिज़र्व करती हो। तुम्हारा मुकम्मल हक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा माया। शायान नदी के किनारे गाड़ी रोकते हुए एक नज़र माया पर डालकर बाहर निकल गया। तो फिर आपने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ क्यों बांधा शायान? अगर आपको अलहदगी ही चाहिए थी तो निकाह क्यों किया आपने? माया तेज़ी से गाड़ी से निकलती शायान के मुकाबिल आ खड़ी हुई। इसलिए किया है कि तुम्हारे बाप को बता सकूं कि उसकी बेटी की रगों में उस औरत के बेटे का खून दौड़ रहा है, जिसे जलालत की ज़िंदगी के गड्ढे में उसने अपने हाथों से दफन किया था। और आज जब उसकी बेटी जलील हो रही है, बिक रही है, एक बेगुनाह औरत का खून मुस्तकबिल में जलीलो ख्वार होने वाली बदनामी के अजदहों से डसने वाली उसकी बेगुनाह बेटी के जिस्म में गर्दिश कर रहा है, उसे फिर पता चलेगा कि बेगुनाही साबित करने के लिए जान से कैसे जाया जाता है। बेगुनाह होते हुए भी लोगों की बातें कैसे सही जाती हैं। बेगुनाह होते हुए भी अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाना कैसा होता है। शायान के लहजे में नफरत थी, हकारत, काट, गुस्सा, क्या कुछ न था। माया अपनी नम आंखें लिए सर झुकाए अपने नाखूनों के साथ खेलने लगी। खामोश क्यों हो? मेरे साथ आज आखिरी दिन है तुम्हारा। कोई बात करो, कोई यादगार बात।
खामोशी से कदम मिलाए, पहलू में सर झुकाए चलती माया ने शायान की आवाज़ पर ज़रा सा सर उठाया था। यादगार? क्या इस मुलाकात से ज़्यादा कोई मुलाकात यादगार हो सकती है? मैं अपनी मोहब्बत को लम्हा ब लम्हा खुद से दूर जाते हुए देख रही हूँ, माया तल्खी से कहती सुस्त रवि से चलने लगी। शायान के कदम भी सुस्त हुए थे। माया, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने बस तुमसे बदला लेने के लिए निकाह किया था, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। मुझे अगर सज़ा देनी है तो तुम्हारे बाप को देनी चाहिए, तुम्हारा क्या कसूर? मैं तुम्हारे साथ पहले ही बहुत गलत कर चुका हूँ, अब मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया हूँ, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। शायान माया का हाथ अपने भारी हाथ में लेते, हल्का सा दबाते, इतराफ़ करते बोला, कैसी मोहब्बत शायान? शायान बोले, मोहब्बत होती तो आप कभी मुझे खुद से दूर ना करते। मैं आपकी दस्तरस में हूँ, आपकी बीवी हूँ, फिर क्यों मुझे अपने से अलग कर रहे हैं? माया बेचारगी से कहती शायान से लगी, आंसू बहाने लगी। शायान माया के गिर्द अपना बाजू हाइल करते, दूसरे हाथ से माया का चेहरा अपने सामने करता, उंगली के पोरों से उसके आंसू साफ करने लगा। मोहब्बत करती हो मुझसे? हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप नहीं करते हैं मुझसे मोहब्बत। माया एक बार फिर आंसू बहाने लगी। अच्छा बाबा, रो तो नहीं, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। शायान माया का चेहरा हाथों में लिए जज्बात लुटाते लहजे में बोला, तो फिर इसीलिए मुझे खुद से दूर कर रहे हैं? नहीं कर रहा, बहुत जल्दी मैं तुम्हें लेने आऊँगा, बस अभी के लिए तुम्हें अपने घर जाना होगा और मुझसे एक वादा भी करना होगा। कैसा वादा? माया सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें हमारे रिश्ते को राज रखना होगा। वक्त का तकाजा यही है कि अभी इस बात को राज ही रहने दिया जाए। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने घर और ज़िंदगी में वापस ले आऊँगा, लेकिन उसके लिए एक बार तुम्हें तुम्हारे बाबा की असलियत जानना होगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, आज मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा, मेरी शनाख्त होते ही वो सब बता देगा और हो सकता है अब भी तुमसे छुपाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम खुद उनसे उनके जुर्म का एतराफ़ सुनो। और तुम्हारी माँ ज़िंदा है, कहाँ है, ये भी तुम्हें उन्हीं से पूछना होगा और उसके बाद तुम्हें फ़ैसला करना होगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगी या नहीं। शायान मोहब्बत से माया को समझाते हुए नर्म घास को बेदर्दी से कुचलते आगे बढ़ रहा था। माया जवाब देने की बजाय इस बात में सर हिलाती, उसके साथ कदम से कदम मिलाती आगे बढ़ रही थी। माया बीबी, आप कहाँ गई थी आप जी? साहब जी तो बहुत परेशान है, परेशानी के मारे उनका बुरा हाल हो गया, सारा सारा दिन कमरा बंद किए पड़े रहते हैं। फ़ारूक साईं के मरने का तो बड़ा ही दुख है जी साहब जी को, तो फ़ारूक साईं की फ़ोटो के सामने खड़े रोते रहते हैं। माया शायान के साथ जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, मुलाजमा उसे देख नॉन स्टॉप शुरू हो गई। बाबा कहाँ हैं इस वक्त? माया ने लाउंज में इधर उधर नज़रें घुमाते हुए पूछा। वो तो जी पुलिस के साथ आपको ढूंढने निकले रहते हैं, अभी भी घर नहीं आए जी। अच्छा, फ़ोन करो उन्हें और मेरे आने की इत्तला दो अभी। माया शायान को बैठने का इशारा करती खुद भी पुरसकून सी सोफे की पोस्ट से टेक लगाकर बैठ गई। लगता है साहब जी आ गए हैं बीबी जी। मुलाजमा गाड़ी की आवाज़ सुनते बाहर की जानिब लपकी थी। शायान बाबा आ गए। माया खौफजदा सी शायान की तन जाने वाले चेहरे की रगों को देखने लगी। तो क्या हुआ, उनका घर था, उन्हें तो आना ही था। शायान अपनी मुठियाँ भींचते लब आपस में ज़ोर से पैवस किए माया को देखने लगा। माया उसकी सुर्ख होती आंखों से खौफजदा होती थूक निगलते फिर से बोली, अगर उन्होंने पूछा कहाँ थी तो मैं क्या बोलूँगी? इतने दिन घर से गायब रही, वो डांटेंगे। अगर मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ का कहूँ तो उन्हें इत्तला तो देनी चाहिए थी ना मुझे। इमामा हादी के घर थी, बस यही बोल देना। इमामा? इमामा कौन? इमामा मेरी माँ, इमामा नौमान। इमामा हादी, तुम्हारे बाप को बहुत अच्छे से पहचान होगी उसकी। शायान के आखिरी जुमले लाउंज में दाखिल होते ज़फ़र के कानों तक भी पहुंच चुके थे। ज़फ़र साहब के कदम दहलीज पे ही साकित हुए। इमामा इधर आओ। लोगों के हजूम को चीरती शोर और डीजे की आवाज़ में इमामा के कानों में हादी की हल्की आवाज़ पड़ी थी, जो सामने हाथ हिलाता अपनी नशिस्त की निशानदही कर रहा था उसे। इमामा सफ़ेद रंग की साड़ी में मलबूस, कंधे पर फैली चादर पर हाथ टिकाए एहतियात से चलती हादी की तरफ मुतवज्जो हुई। इब्तहाज, तुम कहाँ जा रहे हो? अब अपनी भाभी से तो मिल लो। इब्तहाज को तेज़ी से पलटते देख हादी नाराज़गी से बोला, मैं आता हूँ, लेकिन जा कहाँ रहे हो? हादी रुख मोड़कर खड़े इब्तहाज का बाजू पकड़े इस्तफसार करने लगा। इतने में इमामा भी उनके करीब पहुंच चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम। इमामा नवीन और सारिया को सलाम करती हादी के मुकाबिल खड़ी हो गई। इब्तहाज की अपनी जानिब पुश्त होने के बाइस इमामा उसे नहीं देख पाई थी, लेकिन हादी के हाथ में इब्तहाज के बाजू को देखते नासमझी से हादी को देखने लगी। इब्तहाज, अब पलटो भी।
ऐसे क्या रूठी माशूका की तरह मुंह बनाकर खड़े हो? तुम्हें इतनी अचानक कौन सा सांप सूंघ गया है? हादी के अल्फाज इमामा को अलर्ट कर गए। इमामा सुर्ख चेहरे के साथ इब्तहाज के कोट की पुश को घूरने लगी। इब्तहाज को ना चाहते हुए भी पलटना पड़ा। इमामा के कदमों के नीचे से ज़मीन सरक गई थी। आसपास धमाके होने लगे, आंखें धुंधलाने लगी थीं। इमामा, इनसे मिलो, ये हैं इब्तहाज, और इब्तहाज ये इमामा है, मेरी बीवी, और ये हमारा शहज़ादा। वो कहाँ है? हादी दोनों को मुतारुफ करवाए शोखी से इमामा को देखने लगा, लेकिन इमामा तो जैसे सुनने समझने से ही कासी रो रही थी। हादी की आवाज़ उसकी समात को ना छू सकी। इमामा साकित नज़रों से इब्तहाज को देखे जा रही थी। इब्तहाज नज़रें चुराए मुजरिमों की तरह सर झुका गया। इमामा, कहाँ घूमो यार, शायान कहाँ है? हादी इमामा की नज़रों के सामने अपना हाथ नचाते हुए बोला। मामा के पास है शायान। इमामा जवाब देती खुद भी पलट गई। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे काम है, थोड़ा आती हूँ अभी। इमामा के गले में आंसुओं का फंदा लग चुका था। ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। हादी चंद इधर उधर की बातों के बाद किसी पर नज़र पड़ते हवा में हाथ है लहराता एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। इमामा जिंदा है मॉम। आपको यकीन नहीं था? आज यकीन कर लीजिए। उसे अपनी आंखों के सामने देख चलते फिरते देख लिया ना आपने? अब तो यकीन आ गया ना आपको कि वो जिंदा है? मुझसे मेरी मोहब्बत क्यों छीनी आपने मॉम? मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया कि मैं उस तक पहुंच पाता। अपने कदम मजबूरी की जंजीरों में जकड़ दिए मॉम। क्यों किया आपने ऐसा? आपने देखा उसकी नज़रों में कितनी नफ़रत थी मेरे लिए, किस तरह वो हमें काटदार नज़रों से देखती चली गई, हकारत से देखकर चली गई। और मैं क्या, मैंने इतनी अजियत इसलिए सही कि इस अजियत के बदले वो मुझे नफ़रत का तोहफ़ा दे जाए। इब्तहाज तन्हा गोशे में आते सारिया बेगम पर बरस पड़ा। नवीन भी हैरत से मुंह खोले इब्तहाज को देख रही थी। अगर तुम शादीशुदा ना भी होते तो भी वो तुम्हें कभी ना अपनाती इब्तहाज। जितनी नेकियां तुम उसके साथ कर चुके हो ना, उसके बदले में तुम्हें उससे भी दुगनी नफरत मिलनी चाहिए। और तुम मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठे हो उससे। शुक्र करो कि वो तुम्हारे मुंह पर थूक कर नहीं गई। सारिया बेगम उल्टा इब्तहाज को डपटते नवीन का जब्त के मारे सुर्ख होता चेहरा देखने लगी। मॉम प्लीज़, आप तो ऐसे ना बोले, आप तो मेरी माँ है ना। प्लीज़ आप ही मामा को बोले मेरे साथ ऐसा ना करे, मुझे माफ़ कर दे। बहुत दुख सहे हैं मैंने, बहुत तकलीफ़ काटी है। प्लीज़ उसे बोले मेरे पास पलट आए, मेरी ज़िंदगी में लौट आए। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अब उसे कोई दुख नहीं दूंगा। प्लीज़ मॉम। इब्तहाज रोते हुए सारिया बेगम से लिपट गया। तुम भूल रहे हो इब्तहाज कि तुम शादीशुदा हो और इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी मौजूद है। तुम बाप बनने वाले हो। मुझे कुछ याद नहीं है मॉम, मुझे बस याद है तो सिर्फ इतना कि मैं इमामा से मोहब्बत करता हूँ और मुझे वो हर हाल में चाहिए। इब्तहाज, तुम पहले इसके साथ बहुत बुरा कर चुके हो। खबरदार, जो अब तुमने उसे दुख पहुंचाने की कोशिश भी की तो। अभी वो जिंदा है, लेकिन कब तक वो तुम्हारे दुख सहती रहेगी? कब तक तुम उसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देते रहोगे? अब उसका शोहर है, एक बच्चे की माँ है वो, तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो। नहीं मॉम, मैं अपने हर गुनाह का अजाला करना चाहता हूँ। मैं उसे हादी से भी ज़्यादा मोहब्बत दूंगा, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। शट अप इब्तहाज। अब दोबारा आपने अगर उसका नाम भी लिया ना तो। नवीन खुद पर ज़ब्त ना करती बुलंद आवाज़ में बोली थी। इब्तहाज नवीन के चीखने पर उसकी जानिब देखने लगा। यू शट अप नवीन, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे सामने है। मैं उसे किसी का कैसे होने दे सकता हूँ? कभी नहीं। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत किसी और इंसान के साथ देख लूँ। मैं आज, अभी और इसी वक्त उसे लेकर यहाँ से जाऊँगा। इब्तहाज गुस्से से कहता मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हो। अगर मैंने भी मामा हादी से बदला ना लिया तो मेरा नाम भी नवीन इब्तहाज नहीं। देखती हूँ कि किस तरह वो मेरे शोहर को वरगलाती है। नवीन गुस्से से कहती इब्तहाज के पीछे लपकी थी। सारिया बेगम का दिल दोनों के इरादों को भांपते दहल उठा था। इमामा, इमामा तन्हा गोशे में रोते हुए शायान को चुप कराने की कोशिश में टहल रही थी जब अपने पीछे इब्तहाज की सरगोशी सुनी। हेलो ताबिश भैया, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आपको मिलना चाहती हैं, जल्दी से अस्पताल आ जाएं आप। ताबिश अपने कैबिन में बैठा काम में मसरूफ़ था जब फ़ोन पर सारिम की डरी सहमी आवाज़ सुनाई दी। मैं अभी आता हूँ, तुम परेशान मत हो सारिम। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा अम्मी को। ताबिश अपनी फाइल्स टेबल पर फेंकते सारिम को हौसला देता खुद पार्किंग एरिया की जानिब भागा। क्या हुआ है सारिम अम्मी को? ताबिश फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करते अस्पताल पहुंचा था। सारिम को आईसीयू के बाहर टहलते हुए देख वो उसकी जानिब भागा। भाई, अम्मी, अम्मी को बचा लें भाई। सारिम रोते हुए ताबिश के गले लग गया।
उस दिन वाले पूरे एतमाद, मजबूत, सच्चे और खरे सारिम का मवाजना आज करते हुए वो दुख से उसकी पुश्त सहलाने लगा। कुछ नहीं होगा अम्मी को, चुप करो, दुआ करो बस। ताबिश सारिम को खुद में भींचे एक कमज़ोर दिलासा देते बोला था। उसी वक्त आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। डॉक्टर सफ़ेद कपड़े से ढके एक वजूद के साथ आईसीयू के दहलीज को अबूर कर रहे थे। ताबिश से लिपटे सारिम की नज़र भी आईसीयू के दरवाजे से निकलते डॉक्टर पर पड़ी, जो अपने साथ स्ट्रेचर पर सफ़ेद कपड़े से ढके एक वजूद के साथ उनके सामने आ खड़े हुए। सॉरी बेटा, हम इन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर अफसोस से सर झुकाए सारिम का शाना थपकते आगे बढ़ गए। अम्मी। सारिम अरसला बेगम के मुर्दा वजूद से सफ़ेद चादर हटाए बेयकीनी से देखने लगा। हलक में आंसुओं का फंदा अटक चुका था। सारिम अरसला बेगम के मुर्दा वजूद से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा। सब्र करो सारिम, अल्लाह के काम है, हम बेबस हैं, उसके हर काम में कोई मसलहत होती है। ऐसे आंसू ना बहाओ मेरे भाई। ताबिश सारिम को शानों से थामे अरसला से अलग करने लगा। कैसे सब्र करूं भाई, न जाने कितने दुख सीने में छुपा रखे थे अम्मी ने, जो कभी किसी से नहीं कहती थी। चुप का रोज़ा लगा लिया था खुद को, लेकिन शिकवा नहीं करती थी। नदामत, पछतावा, क्या कुछ नहीं था जिसने मेरी माँ का दिल बंद कर दिया। इमामा का दुख सीने से लगाए चली गई हैं, और देखें इमामा कभी लौटी ही नहीं। कैसी बेबसी थी भाई जिसने मेरी माँ का दिल बंद कर दिया। कैसा पछतावा। क्या पछतावे इतने गहरे भी होते हैं कि सांस लेना दूभर कर दें। सारिम ताबिश से लिपटे दिल की भड़ास निकालने लगा। सारिम, अम्मी इमामा की मुजरिम नहीं, मैं हूँ। मैंने उसके साथ जितना बुरा हो सकता था किया, बहुत तकलीफ़ दी उसे, लेकिन देखो मुझे एहसास इतने सालों बाद हुआ, और ऐसे ही ये पछतावा मेरा भी दिल बंद कर देगा। गहरे होते हैं पछतावे बहुत सारिम, बहुत गहरे, इंसान को अंदर के अंदर दीमक की तरह खा जाते हैं। ताबिश सारिम की पोछ सहलाते आंखें बंद किए बोला। आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। चलो सारिम, अम्मी को घर लेकर चलें, हौसला रखो और उनकी मगफिरत की दुआ करो। सारिम अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ करते हुए सर हिलाते स्ट्रेचर थाम कर आगे बढ़ गया।